Okay, so we start our subject with definition of surveying versus leveling. Okay, now then we start our unit with a different instrument of surveying, which is your chain, and on the basis of chain, the surveying is known as chain survey. After that, we move to your compass. Okay, so basically, the surveying which is conducted by the compass is known as compass surveying. And we have another topic which is plane table. This is an instrument name. So surveying with the help of this particular instrument which is plane table is known as plane table surveying. And we have the next one which is known as theodolite surveying. So this is your the syllabus structure of engineering surveying. So we complete chain surveying, we already complete compass surveying. Now we in this lecture we are moving to this one. The third one is your plane table surveying. Is it clear to you? Yes, sir. So Yes, sir. as you can see that the name is plane table. So you have, sorry for interruption. So in this instrument I will show you with the video, but before let just see, there is a table like this. In this table you have a tripod. uh, on this tripod, this table is basically rest. Then you have a drawing sheet over it. uh, from from your centering point. Okay, this centering point is fixed by the plumb bob on the ground. So you have to mark this point on your drawing sheet, like this is the A point. So this is your A point and this is your A dash point. Okay, for confusion I just named two different names. So this A station is your main station. And what is the definition of main station? Main station is that station from which we conduct our surveying work, and all the other stations measures from that particular station. Okay, so after the main station we have two different type of station, like tie station and your subsidiary stations. So basically uh, the different stations like tie station and subsidiary station, the measurement of these station is taken from this main station. तो main station का मतलब आपको समझ में आ गया. Okay, so ये जो plane table है, इसका जो plane है that is your, sorry, this is a jet, it is your vertical plane. Okay, ये vertical plane में है. लेकिन सर्वेइंग के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको जो लोकेशन ऑफ पॉइंट करने हैं वो कहाँ करने हैं, दैट यू हैव टू conduct the location of point in your horizontal plane. Now I convert this figure like this. This is your x, this is your y direction. So you can see that the y axis is like this. ऊपर वाले फिगर में ही y एक्सिस समझ में आ रही है. तो हम क्या इस टेबल को अब अगर हम नीचे बनाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, इसके ऊपर जो ड्राइंग शीट है वो इस तरीके से होगी. ट्राइपॉड मुझे दिखाई देगा इसमें, क्या मुझे ट्राइपॉड दिखाई देगा इसमें फिगर नंबर 2 में? दिस इज फिगर नंबर 1. No. जैसे कि नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं टॉप से देख रहा हूँ. बट आई कैन सी दैट मेन स्टेशन विच आई ड्रॉ ऑन शीट, ड्राइंग शीट. तो ये ए डैश तो मुझे दिखाई देगा, बट आई कैन नॉट सी दिस ए स्टेशन विच इज मार्क ऑन ग्राउंड पॉइंट.
तो ये ए तो नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे इसके ऊपर, एकदम इसके ऊपर मुझे जो पॉइंट है वो मुझे, जो मेरा ए डैश है वो दिखाई देगा. इज इट क्लियर टू यू? Okay. Yes, sir. Now, if I conduct my survey on this one plane, if I conduct my survey on XY plane, so according to the definition of survey, I am justifying my work. तो जो वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो तो मैं जस्टिफाई कर दिया सर्वे के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो एक्स एंड वाई प्लेन में वर्क कर रहा हूँ. ठीक है. अब ये जो फर्स्ट फिगर है ये मैंने क्यों बनाया, फिर अगर मुझे जब सेकंड फिगर में ही काम करना तो फर्स्ट फिगर क्यों बनाया हमने, बताइए, कोई बता सकता है? फर्स्ट फिगर हमने इसलिए बनाया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे. इज इट क्लियर टू यू? अभी मैं आपको इसमें प्रिंसिपल डिफाइन करूंगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है. प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? एक साइंटिफिक अप्रोच. You can say that this is a scientific approach, or you can say this is a scientific logic. Okay. एक लॉ है, एक लॉजिक है, एक रूल है जिसके बेसिस पे हम प्लेन टेबल सर्वे को कंडक्ट कर रहे हैं. सिमिलरली, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग का क्या था? What is the principle of compass surveying? Anyone can answer this question, please? Traversing. 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 And what is the meaning of traversing? So, series of connected lines. Yes, this traversing means series of connections line. So whenever you have to conduct your compass survey, you have to remember that your compass must be placed like this. Okay, this is point A, B, C, D, E and F, and these points are interconnected so that it will show a series of line. Is it clear to you? आपने अगर A पे कंपास रखा है तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा जिस तरीके से लाइन कनेक्ट हो जाए. सपोज देयर इज ए डिफरेंट, आई टेक ए डिफरेंट पॉइंट लाइक दिस इज योर x point and this is your z point, but there is a hindrance between these 2 points. So practically you cannot draw a straight line with these x and y point. So you cannot conduct compass survey for x and y. Clear? Is it clear to you? Yes, sir. But from the A point you cannot find the value of x and y, but from the C point, D point and E point and F point you can find the value of. With the help of this traversing line, I am just sharing that how the surveying is conducted. So basically the principle, I am explaining principle in this figure. Okay, so how the principle is the important thing for any surveying work, and it is also important that on the basis of your principle, which principle is fit, which logic is fit on the particular side, you will adopt that particular survey. Is it clear to you? Yes, sir. Okay, so in this case I am just explaining that what is the principle of plane table. That's why I draw this figure number 1 in vertical plane, which is the actual position of plane table, and this figure number 2 is explaining for the final result work or the final drawing. So now there is a building like this. Okay, so this building is again in your vertical plane, so you cannot find the shape of this building. For the shape of this building you have to move to your horizontal plane. In this case you can see that your graphic area or your college building is like this from the front. Okay, it will look like this now. This is the porch area, this is your ground. ऐसी तो है ही, कॉलेज की बिल्डिंग ऐसी है ना हमारी.
है कि Yes, नहीं sir. है, ठीक है। सो नाउ आई विल टेक टू, मतलब क्लियरली मैं यहाँ पे पहले पहले आपको बताने के लिए सिर्फ मेजर पॉइंट ले रहा हूँ, देन वी विल मूव टू द डिटेलिंग पोर्शन। सो देयर इज point number 1 I mark here, point number 2 I mark here, this is 3 point and this one is 4 point. So now I will conduct a ray from this A1 point toward this 1 point, and this ray is generated from your A point which is on ground, not from A dash. Is it clear to you? But this if I am doing this like this will be like this, okay, or you can say I'm just draw this. Let me take this one. This line is straight line, okay, because I'm talking about the ray, so this will be like this and building will be okay. So this is the first concept you have to understand. So when you are see this line, when you see this ray, basically this is a ray, and then we convert this ray into a line segment. So this ray A to point number 1 will be parallel to your x axis. You can see this, ये parallel है ना x axis की, है कि नहीं है? Yes, sir. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक एकदम स्ट्रेट लाइन कर रहे हो, और क्यों आपने पैरेलल करनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सर्वेइंग हमें जो लोकेशन है पॉइंट्स की, वो हमें एलिवेशन तो देना ही नहीं है। तो एलिवेशन देने का मतलब क्या है कि आपकी जो रे, जो लाइन, जो भी आपका लोकेशन है, जिस चीज को आप कर रहे हो, उसे जेड एक्सिस पे तो आप दे ही नहीं सकते हो, वरना तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन खींचनी है। इज इट क्लियर? या फिर आपकी जो Yes. लाइन होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहली चीज तो ये समझ जानी चाहिए। अब ये जो लाइन है ये ग्राउंड पर है, सो दिस लाइन इज ऑन योर ग्राउंड। और ग्राउंड पे कौन सा प्लेन है, अगर आप ध्यान दोगे तो कौन सा प्लेन आपको ये ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है? ये कौन सा प्लेन है बताइए? ये तो आपकी एक्स एक्सिस होगी, और ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन है। तो ग्राउंड तो आपका वाई और एक्स के बीच होगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपने ये लाइन जो रेज है इसको ड्रॉ किया अप टू ए 1 पॉइंट, और आपने इसको मेजर कर दिया, एंड दिस मस्ट बी, अभी मैंने यहाँ पे एक एज्यूम वैल्यू लिखी है, लेकिन अगर आपने इसको चेन और टेप की हेल्प से मेजर किया, सो एज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट टू 1 पॉइंट इज 10 मीटर, ओके। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay, now when I have to draw this A1 point on your sheets, so what you have to do, you have to draw a ray which is parallel to your initial line like this, okay. So you can see this A dash to the point 1, मैं पॉइंट को 1 को मैं ऐसे वर्टिकली खींच रहा हूँ, ठीक है, ऊपर, यू कैन सी दिस। सो जो ड्राइंग पे लाइन बनी है वो लाइन क्या बनी है, ए डैश टू 1 बनी है, दैट इज द पैरेलल टू लाइन विच इज ड्रॉन ऑन ग्राउंड, बट यू कैन सी दैट देयर इज ए चेंज, ठीक है। शीट के क्या है, वो पैरेलल नहीं होती है। समझ में बात आ रही है? यहाँ पे देखो आपको एक एंगल देखने को मिल रहा होगा, Yes. let me show you with a different color like this. So you can see that there is an angle with the sheet, and similarly you can see that there is an angle again with the sheets. यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, तो आपको थोड़ा इमेजिन हो रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा हिट कर रहा है, Yes, sir. ठीक है ना। तो हमने क्या करा, ये ग्रीन लाइन हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दी। अब ये 10 मीटर है, अब हमने क्या करा, इस शीट का स्केल डिफाइन करा, और हमने यहाँ पे बोला कि
यहाँ पे 1 मीटर ऑन ग्राउंड की जो वैल्यू होगी, ग्राउंड की वैल्यू, वो मैप में 1 सेंटीमीटर शो होगी। सो दिस इज योर स्केल। और इस स्केल को हम कैसे लिख सकते हैं? नाउ द स्केल कैन बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं हम। सो 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप वैल्यू और ड्राइंग वैल्यू और anything which we are constructing or designing, that will represent uh, 1 meter on ground. Is it clear? So this is a scale. Is it clear or not? Or you can write this 1 centimeter upon 1 meter, and 1 meter is equal to 100 centimeter. Centimeter to centimeter cancel, so this is equal to 1 upon 100. So this scale can write as 1%, or you can write as 0.01. Okay, so this is these three types where you have to write your scale. So basically you have cleared this scale concept. Now we draw this length. So here I just draw the A point which is 10 सेंटीमीटर। तो आपको A पॉइंट ड्रॉ हो गया, 10 सेंटीमीटर हमने ड्राइंग में करा। सो जो A डैश से लेकर A1 तक हमने जो लाइन खरी है ऑन द डायरेक्शन ऑफ योर A पॉइंट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करा, हमने सिमिलरली ये लाइन, ठीक है, ये लाइन जो 2 तक थी ये आपकी 1 से ज़्यादा आनी चाहिए, तो हमने इसको 12 ले लिया, तो हमने 12 सेंटीमीटर का यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद 4 भी आपका 12 सेंटीमीटर का है, 2 भी आपका 10 सेंटीमीटर का है। तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमने क्या करा, 12 सेंटीमीटर का यहाँ पे मार्क कर दिया, अगेन 12 सेंटीमीटर का रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर दिया, और 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे मार्क कर दिया। तो हमें ये 4 पॉइंट मिल गए। अगर हम और ज़्यादा रेस करेंगे तो हमें क्या बनेगा, इस तरीके से ये हमारा डायग्राम देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। Yes, sir. ये जो है ये कितने का है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर का, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर का है, और ये वाला अगेन आपका क्या है, 10 सेंटीमीटर का है। बस इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम कौन से उसमें ले रहे हैं, हम जो पॉइंट हमने मेजर करे हैं उस डायरेक्शन में हम इनको ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, वी आर बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोजेक्टिंग दिस बिल्डिंग ऑन योर शीट्स। जो ये आपको दिखाया ना, ये इस तरीके से जो मैंने ये बनाया है, ये आपने क्या करा है, ड्राइंग पे ड्रॉ करा है। और ये जो आपने ड्रॉ किया है ये कौन से प्लेन में किया है, अगेन XY प्लेन में किया है। सो हम प्लेन टेबल को हम सर्विंग बोल सकते हैं, हम लेवलिंग तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने हाइट को मैटर नहीं करा यहाँ पे। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी थी वो हमने नहीं निकाली, हमने क्या निकाली, हमने इस बिल्डिंग का जो शेप था, वो जैसा शेप था ऊपर से टॉप व्यू से जैसा दिखता है, उसको हम अपनी ड्राइंग शीट में एंटर कर रहे हैं और उसको ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान देंगे कि कोई भी लाइन हो आपकी, चाहे इस तरीके से, सॉरी इसको कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं, ये इस तरीके से कोई भी लाइन हो किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, ये सारी लाइन जो है ना, दीज ऑल लाइंस आर पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग इज, इट इज बेस्ड ऑन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन पे बेस्ड कर रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल इज पैरेललिज्म। ओके, क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना, क्या हुआ, पैरेललिज्म, ठीक है, क्लियर। तो पैरेललिज्म का मतलब यहाँ है, ये है कि जहाँ पे आपकी ये पैरेलल लाइंस बनेगी तभी वहीं पे आप प्लेन टेबल कर सकते हो। अगर कोई हिंड्रेंस, अगेन इफ देयर इज अ हिंड्रेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड योर प्लेन टेबल, अब वर्टिकल हिंड्रेंस, बेसिकली वर्टिकल, नॉट अबाउट द हॉरिजॉन्टल हिंड्रेंस। देखो यहाँ पे जो हिंड्रेंस होगा, यहाँ पे कौन सा हिंड्रेंस होगा,
एक्स वाई प्लेन में जो हिंड्रेंस होगा, जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, ये आपके क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिंड्रेंस होंगे। लेकिन अगर कहीं पे जंगल्स है, सपोज दिस इज अ येलो कलर में मैंने यहाँ पे कोई फॉरेस्ट दे दिया या कोई अनदर बिल्डिंग दे दी, या सपोज आपके बस वगैरह आ गई, जैसे स्कूल कॉलेज के सामने बस आ गई और आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो उस केस में आप प्लेन टेबल सर्वे नहीं कर सकते। बट यू कैन कंडक्ट योर प्लेन टेबल सर्वे इफ द ऑब्स्टिकल इन योर हॉरिजेंटल प्लेन, जैसे यहाँ पे आपकी रिवर है, ठीक है, तो बस आपको पॉइंट दिखना चाहिए, जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपके बिल्डिंग के आपने सेलेक्ट करे, वो पॉइंट आपको दिखने चाहिए, लाइक दिस। ये पॉइंट अगर आपको दिख रहे हैं आपके प्लेन टेबल से, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लेन टेबल सर्वे कंडक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। कंपस के केस में क्या था, कंपस के केस में भी दिखना था, लेकिन जब तक आप, कंपस के केस में भी क्या था, कंपस सर्वे के उसमें, कि आपके पास ये जो ऑब्स्टिकल है, अगेन दिस इज वर्टिकल ऑब्स्टिकल। अगर ये वर्टिकल ऑब्स्टिकल होगा तभी तो आप एक्स एंड वाई पॉइंट को नहीं देख पाओगे ए पॉइंट से, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर रिवर पॉन्ड हुआ तब भी तब तो आप देख लोगे वाई पॉइंट को और एक्स पॉइंट को देख लोगे फ्रॉम योर ए पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है वो ट्रैवर्सिंग है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब ये ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है कि लाइन कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको एक्स पॉइंट दिखता है, अगर आपका हिंड्रेंस वाई जेड होगा, फिर भी आप इसको कंडक्ट नहीं कर पाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है एक्चुअल ग्राउंड पर, क्योंकि आप उसको मेजर करोगे ना विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप, Yes, sir. ठीक है ना। तो सिमिलरली कंसेप्ट आपका कहाँ आता है, यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे भी क्या है कि आपको ये ग्राउंड की लाइन क्या करनी है, मेजर करनी है कि नहीं करनी है। तो भले ही यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही है, लेकिन आप क्या कर पा रहे हो, ये डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाओगे ग्राउंड पर। तो आप क्या करोगे, अगर आप चेन और टेप से मेजर कर रहे हो तब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपके पास ईडीएम है, ईडीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, अगर आपके पास ईडीएम है तो आप उससे कंपास सर्वेइंग का ये वाली डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो और ये वाली डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। तो जो मैंने बताया ना आपको कि अगर आपका जो ऑब्स्टिकल है एक्स वाई प्लेन में है और आपको पॉइंट दिख रहा है, तो उस केस में आपके पास ईडीएम होना चाहिए फॉर मेजरिंग योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, समझ में बात आई? तो इस तरीके से हमें ये चीज करनी है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स बना देता हूँ आज के लेक्चर का। आज हमने क्या क्या पढ़ा, वी जस्ट स्टार्ट अवर टॉपिक विथ प्लेन टेबल, ठीक है। प्लेन टेबल में हमने फिर क्या पढ़ा, प्लेन टेबल में हमने क्या पढ़ा, प्रोसीजर पढ़ा, प्रोसीजर प्रोसीजर पढ़ा, पढ़ा हमने प्रोसीजर, कोई बताइए, अटेंडेंस ले रही है क्या आपकी? तो ये टॉपिक्स हमें क्या करना है, कवर करना है। तो हमने प्रोसीजर पढ़ा प्लेन टेबल का, एनीवन? अभी पता चल जाएगा कितने बच्चे एक्टिवली सुनते हैं। अभिषेक तोमर, प्लीज आंसर, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। आदित्य, यस सर। क्या हमने आज प्रोसीजर पढ़ा? अभी तो प्रिंसिपल पढ़ा सर। प्रोसीजर मतलब ऐसा पढ़ा कि बस रेस देते हैं कि अभी जहाँ पे हमें वो लेना होता है, जो पॉइंट हमें ग्राउंड में निकालना होता है, वो प्लेन टेबल पे रेस लेते हैं उससे। ओके, वेरी गुड, मेरे को बस यही सुनना था। तो बेसिकली अभी हमने प्रोसीजर नहीं पढ़ा है बच्चों, अभी हमने सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ा है, और प्रिंसिपल के साथ साथ हमने थोड़ा सा वर्किंग पढ़ा है कि वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, ठीक है। तो शीट के ऊपर रेज बनाते हैं, रेज ऐसा करते हैं, लेकिन हमने प्रोसीजर नहीं पढ़ा है। प्रोसीजर में क्या होता है, आपका स्टेप बाय स्टेप आपके क्या होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं,
एक्टिविटीज होती है कि नहीं होती है, एंड यू हैव टू फॉलो दीज एक्टिविटीज स्टेप बाय स्टेप, सीरीज के अकॉर्डिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट वाली एक्टिविटी पहले कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। एक्टिविटी आपकी जो होती है स्टेप बाय स्टेप करना होता है, जिसकी वजह से आपका जो प्लेन टेबल सर्विंग है वो आप कंडक्ट कर पाओ। क्लियर? तो अजय ने अच्छी तरीके से आंसर दिया है। क्या नाम था तुम्हारा? एक मिनट। आदित्य चौहान ने सही आंसर दिया। ठीक है, मेथड हमने पढ़े नहीं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। अभी हमने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है, रेज वाला। ठीक है, इसमें अलग मेथड होते हैं, जैसे रेडिएशन होता है, इंटरसेक्शन मेथड होता है। So these are the different types of method for your drawing your point or locate your point on your sheets. तो अभी हमने रे वाला पढ़ा है ना, रेज वाला पढ़ा है, तो वो रेडिएशन का एक, अभी हमने इंटरसेक्शन मेथड नहीं पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। और हमने सिर्फ प्रैक्टिकल भी नहीं देखा है। क्या है, हमने ये 3 टॉपिक नहीं करे, और यही 3 टॉपिक आपके इस पूरे प्लेन टेबल के सर्वे को जस्टिफाई करते हैं। तो ये तीनों हमें पढ़ने, आज हमने सिर्फ प्रिंसिपल देखा है और थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा है प्लेन टेबल का। ठीक है, अब मैं आपको प्रोसीजर, इस लेक्चर में प्रोसीजर भी कंप्लीट करवा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ए प्रैक्टिकल वीडियो। क्लियर? Yes, sir. वीडियो में साउंड नहीं आएगी, तो these are the old fashioned tripod, and now we change this tripod into some advanced one which is made up of aluminum material. Okay, so this is your table. Okay, this is your plane table, and you can see this table is in the size of rectangular. So this is your length, which is 75 mm, or you can say that 75 centimeter, and this is breadth. The shorter side is always known as breadth, and this breadth is your 60 centimeter, or you can say 60 mm. So ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वे एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, सो यू कैन कैलकुलेट इजीली। बेसिकली they are just asking the size of the plane table. So there is a, this is your alidate scale. Okay, the first one is your alidate scale over the drawing sheets. So this drawing sheet is fixed by this tape. Okay, tape, or you can fix with the help of pin. The second instrument is here on the table is U fork, spelling U-F-O-R-K. Okay, this is your pencil by which you can draw your points on your drawing sheets. The fourth instrument is bubble tube. Okay, this bubble tube is used for leveling purpose. And the last one is here compass, and this is the third type of compass which I never told you about initially, because in this compass you have a needle, and this only shows the position or the direction of north. Okay, so this type of compass is known as trough compass, TROUGH. Okay, you can write this spelling in your answer sheet or your fair copy. Trough compass. Okay, we have already covered 2 types of compass. The first one is surveyor, another one is prismatic, and this is the third type, which is your trough compass. From this point you have some arrow. This arrow is fixed on your point on ground, which you have to mark with station, main station. And the last one instrument is your plumb bob. Okay, which is used for centering purpose. So now I move this video. इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, उस प्लेन टेबल सर्विंग कैसे किया जाता है, उस प्लेन टेबल सर्विंग में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट के जो नीचे 3 टांग है। You can see this alidate scale. Okay, this will open, this red portion will open, and you will see in further. So basically first you have to attach this plane table. Okay, this is another, this is a ranging rod. Okay, wooden ranging rod. देखिए अब ये हमारा So first you have to attach this plane table survey, plane table instrument over your
क्या कहते हैं और tripod उन stand, इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज़ है। and then ये you दिख will रहा होगा आपको, go ये with सब इंस्ट्रूमेंट हैं। अभी हम centering एक of एक that करके इन सब के particular बारे में आपको बताएंगे tripod stand. और इनका क्या यूज़ है ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं ये जो होता है हमारा, देखा ये So this जो is your plumb bob. इसको हम This बोलते plumb हैं, bob is ये used क्या for होता है centering हमारा, purpose. इसे कहते हैं हम Okay. प्लम बॉब। क्या होता आप है लोगों के ये जब भी प्लम कभी बॉब होता है, दीवार बनी ये होगी जो या होता है वो बाउंड्री बनी होगी, सेंटरिंग आपने करने प्लम के बॉब काम देखा आता होगा। है। प्लम किसके बॉब, काम आता है ये प्लम बॉब Yes. आप हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ होता है, और ये इसका जो सेंटरिंग करने के डायरेक्शन काम होता है ना, आता है। दिस इज मूव टुवर्ड दिस सीजी ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ के अराउंड मूव करता है। ठीक है, तो हम अपना जितना भी स्ट्रक्चर का वेट है, वी जस्ट वांट टू अलाइन द सीजी ऑफ आवर स्ट्रक्चर टू द सीजी ऑफ प्लैनेट अर्थ। ओके, अर्थ के सीजी से हम क्या करते हैं, उसको कोइंसाइड करने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. आवाज आ रही है ना? Yes, पता sir. चल रहा है आपको? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. Yes, sir. कोई आंसर दो, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। Yes, sir. अजय? Yes, Yes, sir. sir. स्टिल नॉट। ओके, क्या पता मैंने ऑफ कर दिया हो। आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, मैं समझ गया। मैंने अपना म्यूट कर दिया था, तो शायद इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना आप लोग, जब आप लोगों के घर बनते हैं तो आप लोग इसको वॉल जब होती है ना, वर्टिकल वॉल, तो उसके अलाइन के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो बेसिकली Yes. वो जो वेट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, हम उसको अलाइन कर रहे हो अर्थ के सीजी में। ठीक है, इसका कभी भी इससे मतलब नहीं कि जेड डायरेक्शन में हो, ऑल्दो वी जस्ट टेक अवर जेड डायरेक्शन, बट वही है कि रेफरेंस वाली बात है कि आप किस रेफरेंस में वर्क कर रहे हो। जिससे कि हम यहाँ पर इसका प्लेन टेबल। उसके बाद हमने इसकी सेंटरिंग करनी है। सो लुक एट दिस पॉइंट, बिल्कुल यहाँ सेंटर होता है बीच में, वहाँ से हम इसको अटैच करेंगे प्लम बॉब को, और वो जहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने अटैच किया, तो जहाँ पे ये पॉइंट आएगा ना, इसको हम मार्क कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वुडन पैक्स। और अगर आपके पास वुडन पैक्स नहीं है तो लाइम पाउडर यूज कर दीजिए, लाइम पाउडर नहीं है तो चॉक पाउडर यूज करिए, चॉक पाउडर नहीं है तो कोई साइड में से कोई भी पत्थर निकाल के आप उसको क्या करना, बेसिकली यू हैव टू मार्क दिस पॉइंट। क्योंकि क्यों मार्क कर रहे हैं, कोई इसका आंसर देगा? क्यों मार्क कर रहे हैं हम इस पॉइंट को? ऐसा तो होता नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो, आपने बिल्कुल वहाँ पे एकदम कोई मार्क करा तो हो जाए। तो जो स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे हमें मार्क करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वहाँ पे जो पोजीशन होता है वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसको कुछ इस तरीके से मार्क करना होता है, विद द हेल्प ऑफ एरो, विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ, मतलब कोई भी ऐसा, अगर कुछ भी ऐसा मिल जाए आपको साइड में, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया, एरो यूज किया, दिख रहा है आपको लोहे का, ये एरो इन्होंने यूज किया यहाँ पे, ये हल्का सा आपको दिखे ना दिखे, पर ये देखो जहाँ पे उन्होंने उंगली लगा रखी ना, ये एक एरो फिक्स कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंक्रीट सरफेस होगा तो आप एरो फिक्स नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे पेंट कर दोगे। ठीक है, वुडन ब्लॉक भी वहाँ पे फिक्स नहीं होगा। अगर ये एरो ना हो तो वुडन ब्लॉक फिक्स कर दो। तो दीज आर द डिफरेंट ट्रिक्स बाय विच यू फिक्स्ड योर स्टेशन। ये एरो फिक्स करा, उसके बाद हमने क्या किया, जो प्लेन टेबल है उसके चारों एजिस कॉर्नर पे एच के नियर ले जाके बबल ट्यूब से लेवलिंग कर दिया। बबल ट्यूब आप सबने देखा होगा, ठीक है, कंपास में भी Yes, आता sir. है। तो बबल ट्यूब से आपने लेवल करा। इस बबल ट्यूब से लेवल करने का क्या फायदा है, जो हमारा जो प्रिंसिपल है पैरेललिज्म का, उसको हम क्या करें, सेटिस्फाई करें। अब आपने ध्यान देना है, बबल ट्यूब इन्होंने इनिशियली कैसे रखा, बबल ट्यूब को इन्होंने इनिशियली लेंथ वाइज रखा। ठीक है, फिर इसी कॉर्नर पे बबल ट्यूब को कैसा रखना है, आपको विड्थ वाइज रखना है। ठीक है, जब पोजीशन अभी ऐसे है, फिर बबल ट्यूब की पोजीशन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू, ऐसा क्यों कर रहे हैं? Yes, sir. देखो इसका पीछे का जो लॉजिक है, मैं अब फिगर वाइज समझाऊंगा आपको कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, और अगर आपने सोम पढ़ी होगी तो भी आपको इसका आंसर मिलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ना, देखो ये बबल ट्यूब है, ठीक है, अभी ये यहाँ पे प्लेन है, तो अब क्या होगा कि ये भले ही यहाँ पे लेवल्ड है, पर जब तक मैं उसको ऐसे नहीं रखूंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा क्या। ठीक है,
तो जब मैं फिगर बनाऊंगा तब आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो ये करने के बाद नाउ सारे कॉर्नर पे हमने फिक्स करा। फिर विद द हेल्प ऑफ यू फॉर्क, अब ये यू फॉर्क जो है देखो ये यू फॉर्क में यहाँ पे आपको प्लम बॉब लगाना है एंड दिस इज the exactly the same point over the plumb bob. So now you are drawing your main station point on your drawing sheets. तो प्लम बॉब देखिए कैसे लगेगा, जहां पे ये पॉइंट अटैच होगा आपके ड्राइंग पे वही को आपको क्या करना है, ए डैश लेना है, या फिर आप ए ले लीजिए। ए डैश मैंने समझाने के लिए लिया था, बेसिकली हमें ए ही लेना है, तो ड्राइंग में भी आपका वैसे तो डायग्राम बनना जैसा आप ग्राउंड में बना रहे हो। तो बस हमने क्या करा, इस प्लम बॉब में देखिए यहाँ पे क्या करा है, इस यू फॉर्क में प्लम बॉब डाला और इसको टेबल के देखिए किस तरीके से किया, जो इसका अपर लिम्ब है वो टेबल के ऊपर है, लोअर लिम्ब हमने टेबल के नीचे रखा है। ठीक है, और जहाँ पे ये पॉइंट जो हमने पहले इनिशियली मार्क किया है सेंटरिंग पॉइंट, वहीं पे हमें ले जाना है इसको प्लम बॉब को, जो इन्होंने एरो है ना, एरो के ऊपर ले जाना है, देखो इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ले गए, इस एरो के ऊपर ये लाए और उसके बाद इन्होंने वो पॉइंट ड्रॉ कर दिया ड्राइंग शीट में। अब ये सारी वैल्यूज आपकी इसी पॉइंट से ले जाएंगे बिकॉज दिस इज योर मेन स्टेशन। और उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली अब नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स करनी है। दिस इज द, अब देख लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स करने के, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रफ कंपास। अब देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन कितना कम है, सिर्फ 5 डिग्री तक का ग्रेजुएशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये जो नॉर्थ है इसके डायरेक्शन को फिक्स करने के काम आता है। क्लियर? किसी भी ड्राइंग को हम स्टार्ट करते हैं हमें उसमें डायरेक्शन फिक्स करनी होती है, ट्रफ कंपास वहां पे यूज होता है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ट्रफ कंपास की हेल्प से एक लाइन खींचेंगे इसके बगल से और वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ शो करेगा। और वही लाइन हमें टॉप में करनी है, जो हमारा ड्राइंग शीट है ना उसके टॉप में करनी है। ठीक है, यू कैन सी दैट द वाइब्रेशन ऑफ दिस निडल, कैन यू सी दिस वाइब्रेशन ऑफ दिस निडल? Yes, sir. Okay, this is occur due to लोकल अट्रैक्शन। उस एरिया में कोई ना कोई लोकल अट्रैक्शन है, इसलिए हमें इसको वेट करना होता है ये कब स्टेबल हो। अगर ये स्टेबल नहीं हो रही है, इफ इट इज कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग, मींस देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लोकल अट्रैक्शन। सो ये आप समझेंगे धीरे धीरे जब आप देखो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये चीजें आप तब समझेंगे जब आप प्रैक्टिकली इसको फील्ड में करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, surveying is totally practical based. So this is your elidate. Okay, so we have two sides. The first one, which is, you can see this is a clearly there is a open space in this first one. So this is a object side from where we range our object, and the another point is your eye side. Okay, in this case you have a very small opening, so you have to match this small opening of eye side to the bigger opening of object side, and this will range to your object or your staff position. तो इस तरीके से आपने करना है, देखिए दिखाएंगे आपको, देख लीजिए ये बिगर ओपनिंग है, यहाँ पे एक थ्रेड है, इस थ्रेड को आपने कोइंसाइड करना है विद योर ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, 1.2.3.4 पॉइंट। क्लियर? और उस पॉइंट्स को हम किससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टाफ। क्यों करेंगे? क्योंकि स्टाफ का जो कलर कोडिंग है वो क्या है हमारा, रेड एंड वाइट है या फिर ब्लैक एंड वाइट है, जो बहुत दूर से इजीली दिख जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से, ये स्मॉल ओपनिंग है, ये आपका आई साइड है, दिस इज योर बिगर ओपनिंग विद द हेयर इज, यू कैन सी दैट यू हैव ए थ्रेड। तो इसको आपने इस तरीके से कोइंसाइड करना है ऑब्जेक्ट पे और फिर लाइन ड्रॉ करनी है। तो दिस इज योर एलिडेट। फॉर दिस कंडीशन दिस इज योर ranging rod, this wooden piece of so now look at this, आप क्या कर रहे हो, ये जो वुडन का रेंजिंग रॉड है इसको इससे रेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच दोगे, जितना वो लाइन क्या होगी, एक तरीके से रेज होगी। फिर उस लाइन में आपको एक्चुअल लाइन खींचने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, इन्होंने कराए कर दिया इन्होंने कोइंसाइड, दिस इज योर वुडन
रेंजिंग रॉड या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ये तीनों चीज़ों का क्या करा, कोइंसाइड किया। फिर ये जो लाइन है यहाँ से आपने लाइन खींचनी है, और ये लाइन कहाँ से खींचनी है, फ्रॉम योर ए स्टेशन, और दैट इज योर रेस। और उस रेस पे आपको स्केल के हेल्प से, स्केल के हेल्प मतलब योर सर्वेइंग स्केल, नॉट योर रूलर स्केल, जो सर्वेइंग स्केल है विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर ऑन द ग्राउंड, उसकी हेल्प से आपने वो पॉइंट ड्रॉ करना है। लाइक दिस, ओके। कहाँ तक करना है, सिर्फ जो स्टेशन आपने कर रखा है। क्लियर? सो क्लियर हो गया आपको ये वीडियो? सर। ठीक है सर। एनी डाउट? एनी डाउट यू कैन। तो प्रोसीजर में क्या क्या होगा भैया बताइए। प्रोसीजर में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप क्या किया, ट्राइपॉड फिक्स किया। सेकंड स्टेप क्या किया हमने, प्लेन टेबल को अटैच करा ओवर ट्राइपॉड, ठीक है। थर्ड क्या किया हमने, सेंटरिंग करी, सेंटरिंग करी कि नहीं करी, यस सर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, प्लम बॉब BOB, ठीक है। फोर्थ क्या किया हमने, लेवलिंग करी, ठीक है, लेवलिंग ऑफ योर प्लेन टेबल। फिफ्थ क्या किया हमने, फिफ्थ क्या किया, रेंजिंग करा। रेंजिंग मतलब क्या होता है, साइट करना। रेंजिंग किया विद द हेल्प ऑफ एलिडेट, किया कि नहीं किया, यस सर। ठीक है। फिर क्या किया हमने नेक्स्ट, ALIDATE, ठीक है, स्पेलिंग भी ध्यान देते रहिएगा, एलिडेट। सिक्स हमने क्या किया, रेंजिंग के बाद रेस ड्रॉ करी। क्या किया, लोकेट किया ना, लोकेट ऑब्जेक्ट पॉइंट, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट पॉइंट्स हैं उनको हमने क्या किया, लोकेट्स किया है कहाँ पे, ड्राइंग शीट पे। भाई रेंजिंग करी आपने एलिडेट से, फिर रेंजिंग करने का मतलब क्या है, आपने रेज ड्रॉ करी है, तो रेज तो आपकी ऊपर ही हो गई, रेज तो आपकी ऊपर ही ड्रॉ हो गई। फिर आपने उस रेज के ऊपर क्या किया, लोकेट किया है आपके ऑब्जेक्ट पॉइंट, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट पॉइंट होंगे। अब जब आपने ये ऑब्जेक्ट पॉइंट किया है ड्राइंग शीट पे, तो इसमें क्या यूज किया आपने, स्केल भी यूज किया है, वही स्केल जो मैं कह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर ऑफ द ग्राउंड। ये आप पे डिपेंड होगा ना कि आपका शीट, ड्राइंग शीट कैसा है, या आप कैसे स्केल ले रहे हो, छोटा ले रहे हो, बड़ा ले रहे हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे स्केल। इज इट क्लियर? सो दीज आर योर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल। क्लियर? इज इट क्लियर टू Yes, यू और sir. नॉट? Yes, sir. ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी कवर अवर प्रोसीजर, वी कवर अवर प्रिंसिपल, एंड वन ऑफ द मेथड विच इज योर रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन वही जो रेज वाला मेथड है ना, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। इंटरसेक्शन मेथड में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इंटरसेक्शन में हम दो स्टेशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी हम कवर कर चुके हैं, बेसिकली वी कवर दिस प्रैक्टिकल, सो वी हैव ओनली लेफ्ट दिस इंटरसेक्शन मेथड। क्लियर हो गया कि नहीं? बस दिस इज अवर रिमेनिंग टॉपिक। Yes, sir. अब आपको क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत होगी नोट्स की, ठीक है भाई। बिना नोट्स के आप आंसर शीट कैसे लिखोगे? सो नोट्स के लिए ये है कि आप लोगों को PDF प्रोवाइड करी जाएगी, बट यू हैव टू रीड दैट PDF, okay, and I will provide that PDF with highlighted portions, so you have to just focus on those highlighted portions, or just or you can note that key points there, those highlighted portion is your key point. So is it clear to you? Yes, sir. So in our next lecture we will move to intersection method and
our leveling method also. Okay, we are moving to leveling. अब यहाँ पे लेवलिंग पे हम मूव कर रहे हैं, हम लेवलिंग टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, पर थियोडोलाइट पे हम क्यों नहीं मूव किए? कोई बता सकता है? थियोडोलाइट पे क्यों नहीं पढ़ा हमने? हमने कहा कि सर्वेइंग जब कंप्लीट कर रही है तो चेन पढ़ लिया, कंपास पढ़ लिया, प्लेन टेबल भी पढ़ लिया, तो थियोडोलाइट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम सीधा लेवलिंग क्यों पढ़ रहे हैं? एनी रीजन? जल्दी बताइए बच्चों, 1 मिनट रह रखा है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी। देखिए मैं बता देता हूँ, चलो सस्पेंस, इतना बड़ा सस्पेंस भी नहीं है कि आप लोग इतना सोचें। देखो थियोडोलाइट क्या है? थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हो। सो यू आर फाइंड योर थीटा एंगल। अब ये आपने मेजरमेंट किया किस में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सिमिलरली आप इससे किसी बिल्डिंग की टॉप का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज फाई, दिस इज थीटा एंड दिस इज सपोज फाई 1 फाई 2 ऐसे करके, ठीक है। तो थियोडोलाइट क्या है? थियोडोलाइट is an instrument by which you can find your angular measurement on horizontal plane as well as vertical planes. So before going to theodolite, we have to cover the basic of vertical plane, and that will cover in the topic of leveling. So when we covered our leveling concept, and when we cover our leveling surveying, we will move our theodolite. So this will easy to understand after the completion of leveling. Clear? Is it clear to you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so this is all about Yes, from sir. today's lecture. I hope you like this. If you have any queries and doubts, please post in your WhatsApp group. And thank you all. I am signing off. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.